Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. So, dear students, I, Munish Yadav, PGT Economics from Surah School Bhiwadi, here to discuss with about chapter 5, that is theory of demand. So, day before yesterday we have started this chapter. So, today we will continue, my dear students, with this chapter and we will complete some more interesting questions from this chapter. Yes, so let's proceed. In this chapter we have started the chapter number 5, that is theory of demand. We have already completed quantity demanded, demand schedule, demand curve, demand functions, determinants of demand in market and individual. Then after yesterday we have completed law of demand. So my dear students, law of demand means it states that when other things remain constant, quantity demanded will increase if price decreases and quantity demanded will decrease if price increases. It means there is an inverse relationship between price of a commodity and its demand. So yesterday we have completed assumptions. So my dear students, assumptions means other than the price को छोड़कर, px को छोड़कर, pr, y, t, e, yd, n, all are the assumptions, all are the other factors which remains to be constant while we are studying law of demand. जब हम law of demand study करेंगे तो ये सारे factors प्राइस को छोड़कर, own प्राइस को छोड़कर सारे constant होंगे. These are the assumptions. And one more question, yesterday we have also completed that why does demand curve slopes downward, or why we demanding more या why we purchased more when price falls. जब भी किसी commodity के प्राइस कम होते हैं तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं. So there are the several reasons: law of diminishing margin utility, income effect, substitution effect, size of consumer, different uses. Yesterday we have all completed. I hope you understood all the point. Today a very interesting topic we are going to start, that is एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी कॉमोडिटी का तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड विल इंक्रीज. इट मीन्स दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस मीन्स सम अपोजिट थिंग्स जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फेल्स करती है. और एक्सेप्शन की मीनिंग ये होती है व्हेन वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है तो एक्सेप्शंस आ जाती, अपवाद आप इसे कहते हो हिंदी में. येस, सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड विच टाइप ऑफ गुड्स वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाइड. फर्स्ट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर वेबलन, okay, the professor Veblen discovered that point, so that's why it is also known as Veblen goods. okay, so article of distinction means जो different category के goods होते हैं, these goods are the royalty symbol, they are showing the high status, luxurious goods. ऑल काइंड ऑफ लग्जीरियस गुड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. और ये तभी सेल ज़्यादा होते हैं जब इनके प्राइस हाई होते हैं, और जैसे इनके प्राइस कम हो जाते हैं मार्केट में सेल भी कम हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया. लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो ही डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी. बट हियर when price increases, demand for the commodities also increases, or when price is falling down then that demand is also falling. it means law of demand यहाँ पे फेल होगी. और जब भी law of demand फेल होगा, जब law of demand अप्लाई होगा तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा. ओके, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे कम होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी. बट जहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, इट मीन्स प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी, तो अपवर्ड होगा. ठीक है, वेयर द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड. डिमांड कर्व कहाँ होगा बेटा? अपवर्ड होगा. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकंड, गिफिन गुड्स. बेटा गिफिन गुड्स आर द हाईली इन्फीरियर गुड्स. इसे गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं. इट मीन्स दीज आर द वेरी चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि हम नॉर्मल कंडीशन में परचेज नहीं करते हैं. बट सपोज देयर प्राइस इज़ फॉलिंग डाउन बिफोर अर्लियर. अगर पहले से ज़्यादा प्राइस कम हो गए तो इनकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी. okay, because these are the very cheap quality product. clear? so law of demand इसमें भी फेल हो रहा है. yes बेटा. next is when consumer judges quality of a commodity by its price. very important and last point from the exception. when the consumer judge the quality of commodity by its price. जब हम किसी भी
कॉमोडिटी की क्वालिटी उसके प्राइस से जज करते हैं. वी ऑलवेज नॉर्मली वी थिंक्स दैट हाई प्राइस मीन्स हाई क्वालिटी, लो प्राइस मीन्स लो क्वालिटी, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्वालिटी को प्राइस से जज करते हैं तो जब प्राइस हाई होगा और क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, और प्राइस कम होने की वजह से क्वालिटी कम समझकर हम उसे नहीं खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है. ओके, yes dear students, so exception, there are the three exception of law of demand. First was article of distinction या Veblen goods, second Giffen goods, and third is judgment of consumer by its price of the commodity. Okay, so along with that our next topic is movements along a demand curve and shift in demand curve. Very interesting and very important topic, because the difference between both can be asked for 6 marks in your exam. ओके, इनका डिफरेंस 6 मार्क्स में भी आता है और इट कैन बी आस्क फॉर द 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है. तो व्हाट इज़ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स. माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द फैक्टर्स. आपके पास फैक्टर्स है जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है. डू यू नो अबाउट द फैक्टर्स? येस, डी एक्स इक्वल्स टू डिमांड फॉर एक्स कॉमोडिटी इक्वल्स टू. तो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं. कौन कौन से पढ़े हैं? फर्स्ट इज पी एक्स, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. सेकंड पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओके, एंड थर्ड इज पी आर. थर्ड इज वाई, टी ई एक्सपेक्टेशन, वाई डी एंड एन population size. Here are the 7 factors that we have completed earlier. So my dear students, movement means it happened because of price. movement means सिर्फ प्राइस की वजह से जो होगा वो मूवमेंट होगा डिमांड में. अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, बाकी चीज़ें उस टाइम कॉन्स्टेंट होंगी. ओके, इट मीन्स प्राइस एक सेपरेट थिंग है. व्हेन प्राइस विल चेंज अदर थिंग्स रिमेन्स टू बी कांस्टेंट. अदर थिंग्स क्या मानी जाएंगी? कांस्टेंट मानी जाएंगी. ओके, सो मूवमेंट के लिए क्या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ओनली प्राइस. बाकी चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट है. एंड शिफ्ट मीन्स बेटा दैट प्राइस इज कांस्टेंट, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस कांस्टेंट है. ओके, अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग. तो दो चीज़ें आपको समझ में आनी है. फॉर द मोमेंट ओनली पी एक्स, ओनली ओन प्राइज इज रिस्पॉन्सिबल, इट विल चेंज, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एंड वाइल वी आर स्टडिंग शिफ्ट इन डिमांड, जब हम शिफ्ट इन डिमांड पढ़ेंगे सो प्राइस विल बी कॉन्स्टेंट. प्राइस कॉन्स्टेंट होगा, अदर फैक्टर्स विल चेंज. ओके, यानी कि एक बार में या तो अदर थिंग्स चेंज होंगी या प्राइस चेंज होगा. जब प्राइस चेंज होगा तो अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट होंगी. ओके, और व्हेन अदर थिंग्स आर चेंजिंग सो प्राइस विल बी कॉन्स्टेंट. Clear? Yes. So now continue with the point. Yes dear students, movement along a demand curve refers to moving up or down the demand curve. डिमांड कर्व का अप और डाउन जाना ही मूवमेंट है. इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, इट विल गो अप और डाउन. इट हैज़ 2 टाइप्स, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन मीन्स फैलना और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना. तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो एक्सटेंशन कब होगी? अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. जैसे ही ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीज होगा डिमांड एक्सटेंड होगी, और जैसे ही ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज होगा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा. ओके, yes. So now move to the next point. First of all we will complete about the diagram of movement along a demand curve and table. Then after we will study the shift. Yes dear student, here is the movement. Okay, here is the table. Look at very carefully. Yes, first of all movement along a demand curve and we are studying extension. Extension में demand curve downward जाएगा. Look at here, when the price of commodity is 5, consumer demanding 1. जब प्राइस 5 रुपीज़ है, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है बेटा? ही इज़ डिमांडिंग प्राइस 5, डिमांड इज़ 1. ओके, बट व्हेन प्राइस फॉल्स, प्राइस 1 रुपीज़ हो गया, डिमांड कितनी हो गई है? 5 यूनिट्स. डिमांड प्राइस जैसे ही फॉल हुआ 1 रुपीज़, डिमांड इंक्रीज. सो अब इन्हें ज्वाइन करें. डिमांड 1 यूनिट से कितने यूनिट्स एक्सटेंड हो गई है? 5 यूनिट्स. ओके, डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है.
सो फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स ओनली डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, सिर्फ डिक्रीज होते ही एक्सटेंड हो जाएगा. ओके. सेकेंड, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन जस्ट अपोजिट, प्राइस इंक्रीज होते ही. लुक एट हियर, व्हेन द प्राइस इज 1, कंज्यूमर डिमांडिंग 5 यूनिट्स. प्राइस 1 है, कंज्यूमर डिमांडिंग 5 यूनिट्स. ओके. व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 5, प्राइस अब 5 रुपीज़ हो गया है एंड क्वांटिटी डिमांड इज 1. तो ये है बेटा कॉन्ट्रैक्शन. देखो हम 5 यूनिट से कितने यूनिट पर आ गए हैं, 1 पर. दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. और ये क्यों हुआ, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस. ओके. जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ओन प्राइस डिक्रीज हो रहा है. ओके. जब ओन प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लुक एट हियर, दिस इज एक्सटेंशन. और व्हेन ओन प्राइस इज इंक्रीजिंग, जब ओन प्राइस इंक्रीज हो रहा है 1 to 5, सो ये कॉन्ट्रैक्शन है. ओके. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो आपको एक ही चीज़ क्लियर करनी है, मूवमेंट मीन्स देर आर द 2 टाइप्स. मूवमेंट मीन्स मूविंग अप एंड डाउन ऑफ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व का अप और डाउन जाना ही मूवमेंट है. इट हैज़ 2 पार्ट्स, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. ये सिर्फ ओन प्राइस की वजह से होता है. व्हेन ओन प्राइस इंक्रीजेज, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, and when own price decreases, this is the extension of demand. Only simple thing you have to learn. Next is shift in demand. Yes dear student, so अब own price constant होगा, क्योंकि shift means other things will change. Other things means price of related goods, income of buyer, expectations, taste and preference, distribution of income and population size. Own price will be constant. सो शिफ्ट इन डिमांड इंक्लूड्स फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड. इसमें डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा. ओके. सो फॉरवर्ड शिफ्ट को हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे. तो पहले फॉरवर्ड शिफ्ट देखते हैं. येस, व्हेन प्राइस इज 10, कंज्यूमर डिमांडिंग 20 यूनिट्स. ओके. नाउ अगेन स्टिल प्राइस इज 10, प्राइस में चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है. डिमांड इज 30 यूनिट्स. मे भी हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, टेस्ट में प्रेफरेंस फेवरेबल हो, पॉपुलेशन साइज बढ़ गया हो. इट मीन्स सेम प्राइस पर डिमांड जो है वो 20 से कितनी हो गई है, इट्स इंक्रीजेज टू 30. सो लुक एट द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. येस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर. ओके. येस, when the price 10, consumer demanding 20 units, this is the demand curve, this is the previous demand curve. Okay. Then after, when price is still same 10, demand is 30. so demand curve shift हो गया D1 से D2 पे, D1 से D2, और ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड. ओके. इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट के, इंक्रीज इन डिमांड के? मे बी व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज. ओके. व्हेन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीज, हो सकता है कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड इंक्रीज हो गई है. देन आफ्टर, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स पेट्रोल के प्राइस कम हो गए, हो सकता है कार की डिमांड इंक्रीज हो गई है. व्हेन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इज फेवरेबल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तो सेम प्राइस पर कंज्यूमर अगेन एंड अगेन ही विल डिमांड मोर. एंड the expectation is that in near future the commodity will not available. सेम प्राइस पर वो commodity फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो कंज्यूमर विल बाय नाउ, वो अभी खरीद लेगा, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो here are the factors which are responsible for increase in demand. ओन प्राइस कांस्टेंट, ओन प्राइस सिर्फ मोमेंट में चेंज होगा, शिफ्ट में चेंज नहीं होगा. yes dear students, next is backward shift in demand curve. so backward shift means डिमांड कर्व डिक्रीज हो रहा है. Okay. Yes. So look at the table. In this table, same price is 10, consumer demanding 30, but price still same, he is demanding 20. Demand कम हो गई है. So why? What are the reason? Look at in the table. We have completed. Now in the diagram. Yes. So here is the point. Same price 10, consumer demanding 30 units, but now the price is same but demand is 20. D1 से D2, इट मीन्स डिक्रीज, बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं. अब बैकवर्ड की क्या रीज़न हो सकते हैं? सो सेम वी विल अपोज द रीजन्स वॉट वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड. जो इंक्रीज इन डिमांड के रीजन्स थे हम उन्हीं को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे. फर्स्ट, व्हेन इनकम ऑफ बायर, इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी सेम प्राइस पर. व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज, कॉफ़ी के प्राइस अगर कम हो गए तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं सो सेमली द कार डिमांड फॉर कार विल डिक्रीज. व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अनफेवरेबल
फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स और नॉट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो आप डिमांड क्यों करोगे, डिमांड डिक्रीज। when the availability of commodity is expected to be rise in the future at low price, ये पता लग रहा है कंज्यूमर को कि फ्यूचर में ये कॉमोडिटी हमें सस्ती और अच्छे से मिल जाएगी मार्केट में, तो ही विल नॉट बाय नाउ, वो अभी नहीं खरीदेगा, तो प्रेजेंट डिमांड विल डिक्रीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रीज़न behind decrease in demand. So I hope you understand today's topic. So what we have completed, first recap, we have started our topic movement along, first of all we have started with the exception, that what are the exception to the law of demand. Then after we have completed movement along a demand curve and shift in demand curve. Movement along a demand curve means first point extension of demand, then contraction, shift means increase in demand and decrease in demand, and what are the causes of increase and decrease, because movement का तो एक ही रीज़न है, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस, बट शिफ्ट के पीछे कई सारे रीज़न है विच वी हैव डिस्कस इन द वीडियो. So my dear student, do your work on regular basis and stay blessed, stay safe at home. And one more thing that is very important, just send pic of your work on regular basis, and beta listen and watch the videos very carefully so that the topic will be clear to you. Okay, so beta, God bless you.